Hello everyone, I am Vandana and we are learning computer of class 5 by Coral Publication, and here's a book, Connect with Computer. Let's start chapter number 7 today, which is Introduction to Scratch. And before starting this chapter, let's move on to chapter Connect. Here the first question is, how many languages can you speak? Name them. आप कितनी languages बोल सकते हैं, उनके नाम लिखने हैं. So here the second question is, what is the full form of logo? So logo का full form है language of graphics oriented. Now let's move on to the chapter. We speak many languages to communicate with people around us. अपने आसपास के लोगों से बात करने के लिए हम बहुत सारे languages को use करते हैं. In the same way, a computer needs instructions in a language that it can understand. इसी तरीके से कंप्यूटर को भी एक ऐसी लैंग्वेज चाहिए जो वो समझ सके. Such languages which are used to write these instructions are called computer programming languages. और ऐसे languages को हम computer programming languages कहते हैं. There are many languages that we can use to write computer programs. बहुत सारी languages को हम use कर सकते हैं computer programs को लिखने के लिए. For example, QBasic, Logo, Visual Basic, C++, Java, Scratch and so on. इसी तरीके से और भी बहुत सारे languages हम use कर सकते हैं. In this chapter, we will study about the Scratch programming language. इस chapter में हम पढ़ेंगे about Scratch programming language. Now let's move on to introduction to Scratch. Scratch 2.0 is a simple programming language used for educational purposes specifically. So ये जो Scratch 2.0 है, ये एक simple programming language है जिसे educational purpose के लिए use किया जाता है. With the help of this language, इस language की मदद से we can create interactive stories. हम बहुत सारे interactive stories को create कर सकते हैं, animations को create कर सकते हैं, games को create कर सकते हैं, music को create कर सकते हैं and art को create कर सकते हैं. Scratch provides a graphical environment. Scratch क्या करता है? एक graphical environment को provide करता है which makes it easy and interesting to use. जैसे क्या बनाता है? और भी ज्यादा easy और interesting बनाता है use करने में. We just have to simply connect different blocks of code. हमें क्या करना होता है? हमें जो है simply बस कुछ blocks of code को connect करना होता है to build the entire program. पूरे program को build करने के लिए. This approach of programming is called the Lego block approach. और इस approach को हम Lego block approach कहते हैं. Let's move on to cyber tidbits. Scratch was developed by the Lifelong Kindergarten Group at the MIT, जिसे हम बोलते हैं Massachusetts Institute of Technology, Media Lab in 2003. Scratch is freely available on the website. Scratch जो है हम फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं. कहाँ से? From https scratch.mit.edu/download #installation. We can install the Scratch 2.0 editor to work on projects without an internet connection. तो बिना इंटरनेट कनेक्शन के भी हम इस पे काम कर सकते हैं. Now, after downloading, let's learn how can we start Scratch. So the next topic is starting Scratch. To start Scratch, अगर हम Scratch को start करना चाहते हैं, follow the given steps. ये जो steps दिए गए हैं उन्हें follow करना है. Step 1 is click the start button and scroll down to the letter S. हमें जो है क्या करना है? स्टार्ट बटन पे जाना है और S लेटर तक स्क्रॉल डाउन करना है. सेलेक्ट Scratch 2 को सेलेक्ट करें फ्रॉम द लिस्ट ऑफ अवेलेबल प्रोग्राम्स. जो भी लिस्ट दी गई है दिए गए प्रोग्राम्स की उसमें से द Scratch 2 ऑफलाइन एडिटर विंडो अपीयर्स. और यहाँ पे जो Scratch 2 ऑफलाइन एडिटर विंडो है वो आ जाएगी. नेक्स्ट, जैसे हमने Scratch खोल लिया है, अब क्या होगा?
let's learn about the components of scratch window. तो यहाँ पे हमें बहुत सारी चीजें दिखाई देंगी हमारे scratch window में, जैसे कि the scratch window has many components as shown in the figure given below. तो यहाँ पे जो फिगर है उसमें हमें दिखाई दे रहा है. सो ऐसे बहुत सारे कंपोनेंट्स हमें स्क्रैच में दिखाई देते हैं. तो यहाँ पे आता है हमारा टाइटल बार, मेन्यू बार, कर्सर टूल्स, ब्लॉक हेल्प, व्यू फुल स्क्रीन, ग्रीन फ्लैग, स्टार्ट एंड स्टॉप बटन, स्टेज, स्प्राइट, न्यू स्प्राइट बटन्स, स्प्राइट लिस्ट, बैकड्रॉप आइकन्स, स्क्रिप्ट्स एरिया, ब्लॉक्स पैलेट, स्क्रिप्ट्स एंड एरिया, ब्लॉक्स, मेन्यू, टैब्स. सो ये सारे कंपोनेंट्स मिलेंगे हमें हमारे स्क्रैच विंडो में. नाउ लेट अस लर्न अबाउट दीज कंपोनेंट्स. इन कंपोनेंट्स के बारे में अब हम डिटेल में पढ़ेंगे. सो फर्स्ट कम्स मेन्यू बार. द मेन्यू बार कंटेन्स मेन्यूज दैट प्रोवाइड ऑप्शंस टू क्रिएट, सेव, ओपन और क्लोज अ प्रोजेक्ट. सो ये जो मेन्यू बार है इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे कि कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं या फिर क्लोज कर सकते हैं प्रोजेक्ट को. अनडू सम प्रीवियस एक्शन, कोई पुराना एक्शन है उसे अनडू कैसे कर सकते हैं. गेट टिप्स, टिप्स कैसे ले सकते हैं, और भी बहुत सारी चीजें. फिर आता है स्टेज. द स्टेज इज द मेन वर्किंग एरिया. स्टेज क्या है, ये मेन वर्किंग एरिया है वेयर वी कैन सी वॉट एवर वी क्रिएट इन एक्शन, जहां पे हम देख सकते हैं जो भी हमने क्रिएट किया है. It is divided into x, y coordinates. ये जो है x, y coordinates में divide है. Next आता है sprite. The sprite is one of the many built-in graphic characters. Sprite क्या है, एक है बहुत सारे जो built-in graphic characters है उनमें से, that performs actions on the stage. जो क्या करते हैं, action को perform करते हैं stage पे. The default sprite of Scratch is a cat. सो यहाँ जो कैट है वो डिफॉल्ट स्प्राइट है, जिसे हम स्क्रैच मैस्कॉट भी कहते हैं, विच वी कैन सी इन द मिडल ऑफ द स्टेज, जो हमेशा हमें स्टेज के बीच में दिखाई देगी. फिर आते हैं कर्सर टूल्स. इट कंटेन्स टूल्स विच आर, इसमें जो है टूल्स मिलेंगे जो कि क्या है, डुप्लीकेट है, डिलीट, ग्रो एंड श्रिंक. सो ये सारे टूल्स मिलेंगे हमें यहाँ पे. They are used to perform different operations on the sprite. इन्हें यूज किया जाता है स्प्राइट में अलग अलग ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए. फिर आता है ब्लॉक हेल्प. The block help button opens help for using a specific block. ये जो ब्लॉक हेल्प बटन है इसे ओपन किया जाता है किस लिए, यूज करने के लिए किसी भी स्पेसिफिक ब्लॉक को. फिर आता है स्प्राइट्स एरिया. ये है आपका स्प्राइट्स एरिया. The sprites area displays the thumbnails with the name and picture of the sprites. So ये जो sprites area ये क्या करता है, डिस्प्ले करता है नाम को, thumbnails को और pictures को, जो भी sprite है जो भी हम अपने प्रोजेक्ट में यूज कर रहे हैं. In addition there are 4 new backdrop. यहाँ पे जो है इसके अलावा आपको 4 new backdrop icons मिलेंगे on the bottom left of the sprites area. जो bottom left है sprites area का, वहां पे. These are used to change the backdrop. इन्हें यूज किया जाता है बैकड्रॉप को चेंज करने के लिए, बैकग्राउंड को चेंज करने के लिए of the stage का, which is white by default. जो क्या है, white है by default. फिर आता है tabs. Scratch provides 3 different tabs. Scratch क्या करता है, हमें प्रोवाइड करता है अलग अलग 3 तरीके के tabs, namely scripts, costumes and sound. Each tab has different tasks to perform. हर एक जो tab है उसके अलग अलग जो है टास्क होते हैं परफॉर्म करने के लिए. Next is blocks palette. The blocks palette displays the sets of blocks present under the current block category. So यहाँ पे हमें क्या मिलेंगे, हमें blocks मिलेंगे current block category में. We can use these blocks to program the sprite. Sprite को program करने के लिए हम इन blocks को use कर सकते हैं. फिर आता है script area. The script area is the place where we drop the blocks dragged from the blocks palette.
सो यहाँ पे जो हमारा स्क्रिप्ट एरिया, वहां पे हम जो भी ब्लॉक्स ड्रैग करते हैं पैलेट एरिया में से, वहां से हम यहाँ पे लाके उसे ड्रॉप कर देते हैं। फिर आता है व्यू फुल स्क्रीन। दिस बटन इज यूज्ड टू व्यू द स्क्रैच प्रोजेक्ट इन फुल स्क्रीन मोड। फुल स्क्रीन मोड में अगर आपको देखना है तो आप व्यू फुल स्क्रीन बटन को क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट इज ग्रीन फ्लैग। दिस बटन इज यूज्ड टू रन अ स्क्रिप्ट स्टेप बाय स्टेप। ये जो बटन है इसे यूज किया जाता है स्क्रिप्ट को स्टेप बाय स्टेप जो है रन करने के लिए। नेक्स्ट कम्स स्टार्ट एंड स्टॉप बटन। सो ये है हमारा स्टार्ट एंड स्टॉप बटन। दिस बटन इज यूज्ड टू स्टॉप द प्रोजेक्ट एट एनी टाइम ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन। सो प्रोजेक्ट के चलते के दौरान जो हमें क्या करना होता है, हम इस बटन को अगर हम प्रेस करेंगे तो जो प्रोजेक्ट है वो हमारा वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। एंड रीस्टार्ट इट व्हेन रिक्वायर्ड, और फिर यहीं से हम उसे रीस्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है न्यू स्प्राइट बटन्स। The new sprite buttons are placed at the bottom right corner of the stage. So ये जो new sprite button है ये कहाँ पे मिलेगा, हमें मिलेगा ये bottom right corner में स्टेज के। These buttons provide different ways to create a new sprite. ये जो buttons है क्या करते हैं, हमें provide करते हैं अलग अलग तरीके create करने के लिए नया sprite, import and use the available sprites. हम नए sprites को import भी कर सकते हैं और जो अवेलेबल स्प्राइट है उन्हें भी हम यहाँ से यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट कम्स टाइटल बार। द टाइटल बार डिस्प्लेज द नेम ऑफ द प्रोग्राम्स टाइटल। ये जो टाइटल बार है ये क्या करता है, ये डिस्प्ले करता है जो भी नाम है प्रोग्राम के टाइटल का उसे। नाउ लेट्स लर्न अबाउट क्रिएटिंग अ न्यू स्प्राइट। कैसे हम एक नया स्प्राइट क्रिएट कर सकते हैं। सो टू क्रिएट आवर ओन स्प्राइट, अगर हम खुद का एक स्प्राइट जो है क्रिएट करना चाहते हैं, फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो। यहाँ जो स्टेप्स है उन्हें फॉलो करना है। स्टेप 1 कहता है क्लिक द पेंट न्यू स्प्राइट। पेंट न्यू स्प्राइट बटन पे हम क्लिक करेंगे इन द स्प्राइट्स एरिया, स्प्राइट्स एरिया में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो द कॉस्ट्यूम्स विंडो अपीयर्स विच कंटेन्स वेरियस बिटमैप टूल्स टू क्रिएट अ स्प्राइट। तो जैसे हम इस बटन पे क्लिक करेंगे क्या होगा, जो कॉस्ट्यूम्स की जो विंडो है वो हमारे सामने आ जाएगी और उसमें आपको बहुत सारे बिटमैप टूल्स दिखेंगे जिन्हें आप यूज करके क्या कर सकते हैं, खुद का एक स्प्राइट डिजाइन कर सकते हैं। नाउ स्टेप 2 इज क्रिएट अ स्प्राइट ऑफ योर ओन यूजिंग द बिटमैप टूल। बिटमैप टूल को यूज करके हम खुद का एक स्प्राइट बना लेते हैं। यहाँ पे द न्यू स्प्राइट अपीयर्स ऑन द स्टेज, और जो न्यू स्प्राइट है वो स्टेज पे आ जाएगा and gets added in the sprites area, और वो sprites area में भी add हो जाएगा। Now we can drag the sprite at the desired location on the stage, और फिर अब हम जो sprite है उसे जो भी desired location है वहां पे हम उसे drag कर सकते हैं। Next आता है adding a sprite from the scratch library। scratch library में बहुत सारे sprites हैं तो वहां से उन्हें कैसे हम ऐड कर सकते हैं। सो टू ऐड अ स्प्राइट फ्रॉम द बिल्ट इन लाइब्रेरी ऑफ स्क्रैच फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो। ये जो स्टेप्स दिए गए इन्हें फॉलो करना है। स्टेप 1 क्या कहता है, क्लिक द चूज स्प्राइट फ्रॉम लाइब्रेरी आइकन। हमें क्या करना है, क्लिक करना है चूज स्प्राइट फ्रॉम लाइब्रेरी आइकन पे इन द स्प्राइट्स एरिया। स्प्राइट्स एरिया में The sprite library window appears। जो sprite library window है वो यहाँ पे खुल जाती है। Step 2 is choose the desired sprite from the library। जो भी हमें sprite चाहिए वो हम library से choose करेंगे and then click OK, और हमें फिर OK पे click करना है। So ऐसे हम अपना sprite जो choose कर सकते हैं। Next topic is creating simple script। To create a script, we simply need to drag the blocks from the blocks palette to the script area। हमें अगर कोई नया स्क्रिप्ट बनाना है तो हमें क्या करना होगा, हमें जो है जो भी हमारे ब्लॉक्स हैं वो ब्लॉक्स पैलेट में से ड्रैग करके स्क्रिप्ट एरिया तक लेके आना होगा। We can place the blocks on each other to create a stack of blocks। हम क्या कर सकते हैं, हम जो भी ब्लॉक्स हैं उन्हें एक दूसरे के ऊपर रख के जो है ब्लॉक्स का एक स्टैक क्रिएट कर सकते हैं। When you do so, there is a white highlight below the previous block। So जैसे हम ये करेंगे तो क्या होगा, जो previous block है उसके नीचे एक white कलर का highlight आ जाएगा
indicating the position where we can place our blocks on each other. ये क्या बताएगा हमें? पोजीशन बताएगा जहां पे हम जो अपने ब्लॉक्स को रख सकते हैं. The instructions on the blocks in the stack create a script. जो instructions हैं हमारे ब्लॉक में, इस स्टैक में वो क्या करते हैं? वो एक स्क्रिप्ट को क्रिएट करते हैं और अ प्रोग्राम या फिर एक प्रोग्राम को क्रिएट करते हैं. सो ये यू कैन सी कैसे हमने जो ब्लॉक्स को एक के ऊपर एक रखा है और यहाँ पे आपको दिख रहा है व्हाइट हाईलाइट. नाउ टू रिमूव अ स्प्राइट फ्रॉम द स्टेज और अ ब्लॉक फ्रॉम द स्क्रिप्ट एरिया. अगर आप स्प्राइट को स्टेज से हटाना चाहते हैं या फिर ब्लॉक को स्क्रिप्ट एरिया से हटाना चाहते हैं, सिंपली राइट क्लिक ऑन इट. हमें क्या करना है? सिर्फ राइट क्लिक करना है उसके ऊपर एंड सेलेक्ट द डिलीट ऑप्शन. और डिलीट ऑप्शन को सेलेक्ट करना है फ्रॉम द शॉर्टकट मेन्यू, शॉर्टकट मेन्यू से. दैट अपीयर्स, जो यहाँ पे आ जाएगा. तो आप देख सकते हो कैसे हमने राइट क्लिक किया तो यहाँ से हमें डिलीट ऑप्शन मिल गया. नाउ लेट अस क्रिएट सम सिंपल स्क्रिप्ट्स इन स्क्रैच. तो चलिए आप सीखते हैं कैसे हम क्रिएट करेंगे कुछ सिंपल स्क्रिप्ट्स को स्क्रैच में. द मोशन ब्लॉक. The motion block includes blocks that control the movement of sprite. जो motion block है उसमें आपको क्या मिलेगा? उसमें मिलेंगे blocks जो क्या करते हैं? मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं sprite के on the stage पे. They are given in blue color. ये जो है blue color के आपको दिखेंगे. So पहला जो motion block है वो है move 10 step. It moves the sprite forward by specified number of steps. सो जितने भी स्टेप्स हम लिखेंगे उसके अकॉर्डिंग जो स्प्राइट है वो फॉरवर्ड की तरफ मूव करेगा. फिर नेक्स्ट है टर्न 15 डिग्री. सो यहाँ पे राइट टर्न करेगा स्प्राइट. इट रोटेट्स द स्प्राइट क्लॉकवाइज बाय द स्पेसिफाइड एंगल. तो यहाँ पे जो स्प्राइट है उसे क्लॉकवाइज घुमाता है ये. नेक्स्ट है टर्न लेफ्ट 15 डिग्रीज. इट रोटेट्स द स्प्राइट एंटी क्लॉकवाइज बाय द स्पेसिफाइड एंगल. जो भी एंगल स्पेसिफाई किया गया है उसके अकॉर्डिंग ये एंटी क्लॉकवाइज जो स्प्राइट है उसे घुमाएगा. फिर है गो टू एक्स वाई. इट मूव्स द स्प्राइट टू अ पर्टिकुलर पोजीशन. ये स्प्राइट को एक पर्टिकुलर पोजीशन तक ले आता है ऑन द स्टेज एज स्पेसिफाइड बाय द एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स, जैसा कि बताया गया है एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स में. नेक्स्ट कम्स द पेन ब्लॉक. इन स्क्रैच अ स्प्राइट has a pen to draw images on the stage. So scratch में क्या होता है? जो sprite होता है उसके पास एक पेन होता है जो क्या करता है? इमेजेस को ड्रॉ करता है स्टेज पे. The pen block is used to change the behavior of the sprite's pen. ये जो पेन ब्लॉक है इसे तब यूज किया जाता है जब जो स्प्राइट है उसके पेन के बिहेवियर को चेंज करना हो. The pen blocks are given in green color. और ये जो पेन ब्लॉक्स हैं ये आपको ग्रीन कलर में मिलेंगे. सो यहाँ पे जो फर्स्ट पेन ब्लॉक है वो है क्लियर का. इट क्लियर्स ऑल द पेन मार्क्स फ्रॉम द स्टेज. स्टेज पे से जितने भी पेन मार्क्स है उन्हें क्लियर करता है. फिर आता है स्टैम्प. इट क्रिएट्स द डुप्लीकेट कॉपी ऑफ द स्प्राइट. ये जो डुप्लीकेट कॉपी है स्प्राइट की उसे क्रिएट करता है. नेक्स्ट पेन अप. इट लिफ्ट्स द पेन अप. ये पेन को ऊपर की तरफ लिफ्ट कर देता है. सो इट कैन नॉट ड्रॉ एनीथिंग एज द स्प्राइट मूव्स. जैसे जैसे स्प्राइट मूव करेगा वो कुछ भी ड्रॉ नहीं करेगा. फिर आता है पेन डाउन. इट पुट्स द पेन डाउन. ये पेन को नीचे की तरफ करता है सो दैट इट स्टार्ट्स ड्रॉइंग ऑन द स्टेज, ताकि ये स्टेज पे ड्रॉ कर सके. फिर आता है सेट पेन कलर टू. पेन के कलर को सेट करने वाला ब्लॉक. इट सेट्स द पेन कलर. ये पेन के कलर को सेट कर देता है. वी कैन टाइप द नंबर फ्रॉम 0 to 200 टू सेट द डिजायर्ड कलर. हम क्या कर सकते हैं? हम नंबर को टाइप कर सकते हैं 0 से 200 तक ताकि हम जो डिजायर्ड कलर दिया गया उसे सेट कर सके. फिर आता है सेट पेन साइज. यहाँ पे इस ब्लॉक को यूज करके हम क्या कर सकते हैं? इट सेट्स द थिकनेस ऑफ द स्प्राइट्स पेन. स्प्राइट का जो पेन है उसकी थिकनेस को ये ब्लॉक सेट करता है. नेक्स्ट कम्स कंट्रोल ब्लॉक. द कंट्रोल ब्लॉक हैज ब्लॉक्स दैट कंट्रोल द स्प्राइट. सो यहाँ पे जो कंट्रोल ब्लॉक है उसमें आपको ऐसे ब्लॉक्स मिलेंगे जो स्प्राइट को कंट्रोल करते हैं. The control blocks are given in yellow color. और ये आपको येलो कलर में मिलेंगे. सो यहाँ पे कुछ कंट्रोल ब्लॉक्स दिख रहे हैं और यहाँ पे उससे रिलेटेड डिस्क्रिप्शन दिया गया है. पहला जो ब्लॉक है वो है वेट 1 सेकेंड.
It makes the sprite wait for the specified time interval before continuing with the next block. So ये क्या करता है, स्प्राइट को जो है रोक के रखता है एक स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम तक, जब तक हम दूसरा ब्लॉक ना डाल दें. फिर है रिपीट ब्लॉक. इट एग्जीक्यूट्स द ब्लॉक्स इनसाइड इट फॉर अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स. सो ये जो रिपीट ब्लॉक है किस काम आता है, इसके अंदर जो भी ब्लॉक्स हम डालते हैं वो दिए गए जितने भी नंबर ऑफ टाइम्स उतने टाइम जो है वो एग्जीक्यूट होते हैं. फिर आता है फॉरएवर ब्लॉक. इट एग्जीक्यूट्स द ब्लॉक्स इनसाइड इट कंटिन्यूअसली यू until we press the stop button. सो ये जो है बटन क्या करता है, ये जो ब्लॉक है ये क्या करता है, ये एग्जीक्यूट करता है जो भी ब्लॉक है इसके अंदर उसे कंटिन्यूअसली एग्जीक्यूट करता रहता है जब तक हम जो है स्टॉप बटन को प्रेस ना करें, तब तक ये ब्लॉक्स को जो है कंटिन्यूअसली चलाता रहता है, स्क्रिप्ट को कंटिन्यूअसली चलाता है. नेक्स्ट आ रहा है हमारा साउंड ब्लॉक. द साउंड ब्लॉक इज यूज्ड टू कंट्रोल द साउंड ऑफ द स्प्राइट. सो ये जो ब्लॉक है इसे यूज किया जाता है जो स्प्राइट है उसके साउंड को कंट्रोल करने के लिए. द साउंड ब्लॉक्स आर गिवन इन मैजेंटा कलर, और ये जो साउंड ब्लॉक्स हैं ये मैजेंटा कलर के हैं. So here you can see the different sound blocks and the description. So first block is play sound. It plays the sound selected from the drop down list. जो भी यहाँ पे आपको drop down list दिख रहा है इसमें से आप जो भी sound को select करेंगे उसे ये play करेगा of the block without pausing the script, बिना script को pause किए. फिर आता है play sound until done. It plays the sound and pause the script until it finishes. तो साउंड को तब तक ये प्ले करता है जब तक वो फिनिश ना हो जाए. फिर है स्टॉप ऑल साउंड्स. इट स्टॉप्स ऑल द करेंटली प्लेइंग साउंड्स. ये जितने भी करेंटली प्लेइंग साउंड्स हैं उन सबको स्टॉप कर देता है. नेक्स्ट है प्ले ड्रम फॉर दिस मेनी बीट्स. इट प्लेज अ ड्रम साउंड फॉर अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ बीट्स. ये क्या करता है, ड्रम को प्ले करता है जो भी नंबर ऑफ बीट्स दिए गए उसके अकॉर्डिंग. We can change the drum type, हम ड्रम के टाइप को चेंज कर सकते हैं. And the number of beats from the drop down list. So जो नंबर ऑफ बीट्स है उसे भी हम यहाँ से चूज कर सकते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट में से. And text field of the block respectively, और जो text field है ब्लॉक का वहां से. Next is using the blocks. कैसे हम ब्लॉक्स को यूज कर सकते हैं. Let us see some examples to learn how to use the blocks to create a code in scratch. तो चलिए पढ़ते हैं कैसे हम जो है इन ब्लॉक्स को यूज कर सकते हैं एक कोड को क्रिएट करने के लिए स्क्रैच में. एग्जाम्पल 1 is given here. Script using various pen and motion blocks. तो हम यहाँ पे यूज करेंगे बहुत सारे पेन और मोशन ब्लॉक्स को स्क्रिप्ट को क्रिएट करने के लिए. सो हमें क्या करना है, पहले ड्रैग करना है मूव 10 स्टेप ब्लॉक फ्रॉम द मोशन ब्लॉक कैटेगरी में से इसे निकालना है टू द स्क्रिप्ट एरिया तक लाना है एंड चेंज द नंबर ऑफ स्टेप्स इन द ब्लॉक्स. और जो नंबर ऑफ स्टेप्स दिए गए हैं उन्हें चेंज कर दें टू 100. यहाँ पे 10 की जगह 100 कर दें बाय टाइपिंग इन द नंबर बॉक्स में टाइप करके. फिर आता है ड्रैग द टर्न 15 डिग्रीज ब्लॉक. अब इस ब्लॉक को जो है यूज करेंगे हम, इसे भी हम स्क्रिप्ट एरिया में लाएंगे और उससे जो है लगा देंगे इस ब्लॉक को जो प्रीवियस ब्लॉक था उसके जस्ट नीचे. अब यहाँ से हमें क्या करना है, चेंज द नंबर ऑफ डिग्रीज टू 60. यहाँ जो 15 डिग्री लिखा है उसे 60 डिग्री पे कर देना है. स्टेप 3 इज क्लिक द पेन ब्लॉक इन द ब्लॉक्स मेन्यू में जाके पेन ब्लॉक को क्लिक करना है. वेरियस ब्लॉक्स अंडर द पेन कैटेगरी आर डिस्प्लेड. यहाँ पे जो बहुत सारे ब्लॉक्स हैं पेन कैटेगरी में वो सारे यहाँ पे डिस्प्ले होने लगते हैं इन द ब्लॉक्स पैलेट में. स्टेप 4 इज ड्रैग द पेन डाउन ब्लॉक टू द स्क्रिप्ट एरिया. जो पेन डाउन ब्लॉक है उसे स्क्रिप्ट एरिया में ड्रैग करना है एंड प्लेस इट बिलो द प्रीवियस ब्लॉक. और उसे जो है जो प्रीवियस ब्लॉक है उसके नीचे लगा देना है. फिर स्टेप 5 है ड्रैग द सेट पेन कलर टू ब्लॉक टू द स्क्रिप्ट एरिया. अब हमें क्या करना है, ड्रैग करना है सेट पेन कलर ब्लॉक को स्क्रिप्ट एरिया तक लेके आना है एंड प्लेस इट बिलो द पेन डाउन ब्लॉक. और उसे पेन डाउन ब्लॉक के नीचे लगा देना है. क्लिक ऑन द इमेज ऑफ द स्प्राइट. जो इमेज है स्प्राइट की उस पर क्लिक करें टू चेंज द कलर टू येलोइश ऑरेंज. यहाँ पे हम कलर जो है चेंज करेंगे येलोइश ऑरेंज में. नाउ स्टेप 6 इज
drag the set pen size to block to the script area. अब हमें जो पेन का साइज है उसे सेट करना है, तो हम इस ब्लॉक को स्क्रिप्ट एरिया में लेके आएंगे एंड प्लेस इट बिलो द प्रीवियस ब्लॉक. जो पहले का जो ब्लॉक था उसके नीचे से लगाना है. चेंज द नंबर टू 4. यहाँ पे जो नंबर है उसे 4 पे हमें चेंज कर देना है. नाउ स्टेप 7 इज रन द स्क्रिप्ट बाय डबल क्लिकिंग ऑन इट कंटिन्यूअसली. हमें जो स्क्रिप्ट है उसे रन करना है, उस पर डबल क्लिक करते हुए बार बार. ऑब्जर्व द इमेज ड्रॉन ऑन द स्टेज. अब हमें क्या करना है, हमें जो स्टेज पे इमेज दिख रही है उसे ऑब्जर्व करना है. तो जैसे हम इन ब्लॉक्स को जो है यूज करते हैं तो ये इमेज हमारे सामने बन के आती है. स्क्रिप्ट फॉर ड्रॉइंग अ हेक्सागन. ये स्क्रिप्ट है हेक्सागन बनाने का, और ये देख सकते हैं आप ड्रॉइंग द हेक्सागन मींस स्प्राइट कैसे हेक्सागन को बना रहा है. एग्जांपल 2 इज स्क्रिप्ट टू अंडरस्टैंड द यूज ऑफ साउंड ब्लॉक. सो साउंड ब्लॉक को हम यूज करेंगे, मींस हम यहाँ पे स्क्रिप्ट को क्रिएट करेंगे ताकि हम साउंड ब्लॉक के यूज को जो है अच्छे से समझ सके. सो ये जो आपको यहाँ पे जो भी ब्लॉक्स दिख रहे हैं, इन ब्लॉक्स को हमें यूज करना है एंड देन वी हैव टू प्ले इट. दिस स्क्रिप्ट विल मूव द स्प्राइट 10 स्टेप्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. ये जो स्क्रिप्ट यहाँ पे लिखी है उससे क्या होगा, जो स्प्राइट है वो 10 स्टेप्स आगे की तरफ चला जाएगा along with playing our drum beat. और इसके साथ जो ड्रम बीट है वो भी प्ले होने लगेगी. The sprite will also keep drawing a path with the help of its pen. और जो स्प्राइट है वो एक रास्ता जो है ड्रॉ करता जाएगा अपने पेन की मदद से. When it will move, जब वो मूव करेगा. So आप देख सकते हो the result is in front of us. Now let's learn about saving the scratch project. अब हमने स्क्रैच प्रोजेक्ट पे वर्क कर लिया, कैसे अब उसे सेव करना है ये अब हम पढ़ने वाले हैं. We should always save a scratch project for future reference. फ्यूचर रेफरेंस के लिए हमें हमेशा जो स्क्रैच प्रोजेक्ट है उसे सेव करके रखना चाहिए. टू सेव द प्रोजेक्ट फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो. अगर हम इस प्रोजेक्ट को सेव करना चाहते हैं तो ये जो स्टेप्स दिए गए हैं हमें फॉलो करना है. स्टेप 1 इज क्लिक द फाइल बटन ऑन द मेन्यू बार. मेन्यू बार पे हमें जो है फाइल बटन पे क्लिक करना है एंड देन क्लिक द सेव एज ऑप्शन, और वहां से हमें सेव एज ऑप्शन को चूज करना है फ्रॉम द सब मेन्यू दैट अपीयर्स. जो सब मेन्यू हमारे सामने आएगी. द सेव प्रोजेक्ट डायलॉग बॉक्स अपीयर्स, और जैसे हम ये करेंगे जो सेव प्रोजेक्ट डायलॉग बॉक्स है वो हमारे सामने आ जाएगा. नाउ स्टेप 2 इज चूज द डिजायर्ड लोकेशन ऑफ द फाइल. जो फाइल है उसकी जो भी डिजायर्ड लोकेशन है उसे चूज करें एंड एंटर द नेम ऑफ द फाइल इन द फाइल नेम टेक्स्ट बॉक्स. और जो भी नाम है वो फाइल नेम टेक्स्ट बॉक्स में एंटर करें विथ .sb2 एक्सटेंशन, और साथ में लगाएं .sb2 एक्सटेंशन यहाँ पे. नाउ स्टेप 3 इज क्लिक द सेव बटन. सेव बटन पे क्लिक करें, द प्रोजेक्ट विल बी सेव्ड, और इसके साथ जो हमारा प्रोजेक्ट है वो सेव हो जाएगा. नाउ लेट्स मूव ऑन टू रिकैप. लैंग्वेजेस which are used to write these instructions are called computer or programming languages. Scratch 2.0 is a simple programming language used for educational purposes. Specifically, the instructions on the blocks in the stack create a script or a program. We can use the blocks such as the motion block, pen block, control block and sound block in the block palette to create scripts. We should always save a Scratch project for further reference. Now let's move on to evaluate here. A exercises, take the correct answer. First one is the instructions on the blocks in the stack create a stage, script, spread. Correct answer is script. Second one is which one of the following is not a component of the Scratch window? Menu bar, stage or status bar? Correct answer is status bar. Third one, which instruction cannot be performed using the pen block? Direction of the pen, color of the pen, size of the pen. Correct answer is direction of the pen. Fourth one, the color of the sound block is pink, red, magenta. Correct answer is magenta. And the fifth question is
The extension of a Scratch project is .sp, .sb2, .sp2. Correct answer is .sb2. So do the questions like this. Now let's move on to B part, which is fill in the blanks. Here the first one is the default sprite in Scratch is a cat. Second one, Scratch was developed by the Lifelong Kindergarten group. Third, the move 10 steps command can be found under motion block. Fourth one, the sound block can be used to play sound in the script. Fifth one, the control blocks are given in yellow color. Now, let's move on to C exercise, which is write T for true and F for false statements. First one is, a computer can understand any language. This is false. Second, a Scratch program is saved as a project using the extension .sb2. Yes, this is true. Third one, each picture in a Scratch is known as sprite. True again. Fourth, the area where the sprite moves is called the sprite library. False again. Fifth one, we can set the pen size according to our desire. Yes, this is true. So these are the answers that you have to write and do the rest of the questions yourself. With this, we have completed the chapter. I hope you understood it. I'll be meeting you soon with a new video and a new chapter. Till then, stay tuned and thanks for watching.